خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرات، علماء کرام اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ان لوگوں سے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، یا تو بیٹھ جائیے یا پھر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو ضرورت سے فارغ ہو جائیے۔ بیٹھ جائیے بھائی، کوئی کھڑا نہ رہے، جس کو کھڑا رہنا ہے وہ باہر چلا جائے، ادھر چلا جائے۔ اے لڑکا ٹوپی والا، کیا دیکھ رہا ہے تو؟ بیٹھ کیا ادھر جا، چائے پی کیا۔ کوئی بھی کھڑا نہ رہے سامنے کسی بھی طرف۔ جس کو جلسہ سننا ہو بیٹھ جائے، اور جس کو نہیں سننا ہے وہ جا کر کے دکان میں چائے پیے۔ ادھر دکانیں بھی بہت ساری لگی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، آج کا جو جلسہ ہے ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے مصباح العلوم کے نام سے، مفتاح العلوم کے نام سے، اور بڑی خوشی ہوئی جب یہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کچھ بچے حافظ ہوئے ہیں اور ان کی دستار بندی ہونی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، میں ضرور آؤں گا۔ مکتب کے جلسے میں ضرور جاتا ہوں، مکتب ہو مدرسہ ہو، چاہے عام جلسے میں نہ جاؤں، اس لیے کہ مکتب اور مدرسہ نہیں ہوگا تو دین نہیں ہوگا، مکتب اور مدرسہ نہیں ہوگا تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ چاہے آپ کتنی بھی محنت کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، اسلام کا پاور ہاؤس اور ایمان جہاں سے ایمان کی سپلائی ہوتی ہے وہ مدارس ہیں، اور اس سے نیچے مکاتب ہیں۔ جب تک ان کا نظام باقی رہے گا، دنیا کو چھوڑیے، ہندوستان سے بھی مسلمان کو، اسلام کو، ایمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور جس دن آپ کا رشتہ ان مدارس اور مکاتب سے کٹ جائے اور ان سے تعلق کٹ جائے گا، آپ کے ایمان کا بھی کوئی محافظ نہیں ہوگا، آپ کی ٹوپی اور داڑھی کا بھی کوئی محافظ نہیں ہوگا، آپ کی مسجد کا بھی کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان مدارس اور مکاتب کو مکتب مت سمجھیے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے یہی ایک ہتھیار ہے مسلمانوں کے لیے۔ مدارس کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ یہ مدارس چلتے کیسے ہیں؟ 2 روپے 4 روپے کے چندے سے چلتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی ذریعے آمدنی ہے مستقل کہ بھئی 10-20 بیگھے زمین ہے، فیکٹریاں ہیں لگی ہوئی اور پیسے آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک آدمی گھر میں 3 آدمی کا انتظام کرتا ہے تو روزانہ سوچتا رہتا ہے، لیکن ایک مدرسے میں 100 بچے ہاسٹل میں کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھایا تو گویا 300 آدمی کا انتظام، اور جس وقت مدرسہ کھلتا ہے 1 بھی پیسہ نہیں ہوتا۔ اللہ پہ توکل اور بھروسہ پورا سال چلتا رہتا ہے، پیسے آتے رہتے ہیں۔ کون بھیج رہا ہے؟ آپ، ہم اور لوگ بھیج رہے ہیں۔ اللہ ان کے دل کے اندر داعیہ پیدا کرتا ہے۔ ان مدارس کے جال کو دارالعلوم دیوبند نے پھیلایا۔ دارالعلوم ہی اصل
तमाम मदारिस का किला है जिसको उम्मुल मदारिस कहा जाता है। ये मदरसे सही इल्म देते हैं, सही निहज देते हैं। आज लोग कहते हैं इस्लाह मुआशरा का जलसा, अरे नमाज नहीं पढ़ते इस्लाह मुआशरा, फिर क्या मतलब है? वो लड़के वो बच्चे जो 1 महीने तक चंदा करते हैं, गाड़ी लेके दौड़ते हैं, वो लड़के तो नमाज ही नहीं पढ़ते। आज भी वो नमाज नहीं पढ़ेंगे जिस दिन जलसा हो रहा है। इस्लाम मुआशरा, मुआशरा क्या इस्लाह मुआशरा? एक वक्त नमाज छोड़ना एक गुनाह है कबीरा, और दिन में 24 घंटे में 5 वक्त नमाज छोड़ दिया 5 गुनाह है कबीरा। 5 गुनाह कबीरा से पहले रुको ना। आदमी जिना करेगा, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह, तो शायद सालों में एक बार एक गुनाह हुआ, और यहाँ 5 गुनाह रोजाना हो रहा है, और कबीरा गुनाह है। उसने अल्लाह के हक को जाया किया, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, और फिर इस्लाह मुआशरा की सोच रहे हैं आप। हमारे इलाके में जलसे होते हैं, अफसोस की बात है यहाँ से लेकर के झवामनी तक 150 कदम का फासला होगा, 200 कदम का। 3 जलसे हो गए, नरसों एक खत्म हुआ, परसों एक फसल हुआ, और कल से फिर यहाँ शुरू है। ये नुमाइश है, किस लिए हो रहे हैं जलसे? कुछ फायदा हो रहा है? जलसों की कसरत से फायदा नहीं होगा जब तक हम खुद अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करें। तब्दीली के इरादे से आना पड़ेगा। जलसा सुनने जाते हैं, आज से 30 साल 40 साल पहले जब हम लोग छोटे थे, 10 कोस दूर में एक जलसा होता था, लोग जाते थे, शौक से सुनते थे, आते थे, कुछ अमल करते थे। आज 200 कदम के फसले पे 3 जलसा, और एक जलसे में 1 लाख का खर्च, 2 लाख का खर्च। एक शायर को आपने प्रतापगढ़ से बुलाया, बुरा मत मानिएगा, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, 30,000 रुपये उसके पीछे खर्च है। और एक मकतब चलाने वाला बेचारा एक आदमी को 1 घंटे के लिए 30,000 उसके पीछे ठोक दिया। आपको चंदा दिया था एक आदमी को 30,000 रुपये देने के लिए, क्या जरूरत है उस जलसे की? एक नात पढ़ देगा वो, उससे आपके दिलों में क्या तब्दीली आ जाएगी? सब लोग जो है मुसलमान होकर के चले जाएंगे यहाँ से, क्या होगा? रुपए 30,000 चले गए आपके। अरे दारुल उलूम देवबंद से उस्ताद को मंगाइए, 30,000 उसके पीछे खर्च कीजिए। एक बात अल्लाह बोलेगा, बहुत से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। कौन है जो तौखीर के पास आके पूछे कि मौलवी साहब दारुल का कोई निस्बत वाले बुजुर्ग को बुलाना चाहते हैं, चाहे 50,000 ही खर्चा हो जाए। सहारनपुर के उस्ताद को बुलाना चाहते हैं, चाहे 50,000 ही खर्चा हो जाए। मुरादाबाद शाही से एक उस्ताद को बुलाना चाहते हैं, हदीस के उस्ताद को, चाहे 40,000 ही खर्चा हो जाए। गिने चुने आपके चंद गवैये मुकर्रिर हैं, उनमें से एक ये था जो कह रहा मैं उर्दू नहीं बोलना चाहता। नहीं जब बोलना चाहता तो कौन तुमको बुलाता है? क्यों बुलाया उसको? क्या है नहीं तकलीफ करने वाला इलाके में? कहीं से फारिग नहीं है वो शख्स, कोई मौलवी नहीं है वो। उलमा देवबंद के एक वाकया वो नहीं सुना सकता है। क्यों बुलाते हैं आप उसको? मदरसा चलाने वाले को तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। ये जलसा है कि मजाक है? पूरा इलाके को मजाक बना रखा है। सही उलमा की रहनुमाई हासिल नहीं करेगा, सही आदमी को नहीं बुलाएगा, किसी साहिब निस्बत बुजुर्ग को नहीं बुलाएगा। एक बुजुर्ग आएंगे, 50 आदमी मुरीद होंगे, बैत होंगे, उससे उसकी जिंदगी बदलेगी। एक आदमी आता है, रामायण पढ़ता है, रामायण वाला जब वो लोग प्रोग्राम करते हैं कि आपका कुरान पढ़ता है वहां, अब आपने जलसे में रामायण सुनते हैं, हैरत नहीं है, शर्म नहीं आती लोगों को? किस लिए बुलाते उसको? सिर्फ कान में मजा आ जाए, सुनने में मजा आ जाए, अमल की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि अमल करना पड़ेगा। शायर का कलाम इसलिए सुनते हैं, सुनने में मजा आता है, सुनने की हद तक है बस,
दिल में कोई उतारना नहीं चाहता। आप रामायण सुनते हैं, आप वेद सुनते हैं, अड़म बड़म बोलता है आपके यहाँ बैठ करके, 2-3 मुकर्रिर हैं, सब जगह वही आते हैं। जलसा जो लोग कराते हैं वो सुधर जाए, वरना उलमाए हक की एक तंजीम बना दूंगा, कोई जलसे में नहीं जाएगा तकरीर करने के लिए। फिर वही चंद गवैया आएंगे और तकरीर करते रहेंगे। जब हमारी सुनते नहीं, हम पैसा नहीं लेते इसलिए हमारी अहमियत नहीं है, और जो 10,000 लेता है उसकी अहमियत है, जो 20,000 लेगा उसकी अहमियत है। और हम जैसे मौलवी चाय भी नहीं पीता है, आता है चला जाता है, छोड़ो ना मौलवी साहब को कौन पूछता है। ये हाल है जलसों का। मेरी बात किसी को बुरी लगे, मैं अल्लाह के लिए बोलता हूँ, इंसान के लिए नहीं, और मैं किसी इंसान से डरता भी नहीं हूँ। एक इदारा चलाता हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह चला रहा है, जब तक चला रहा है चलाएगा, नहीं चलाएगा अल्लाह का काम, छोड़ देंगे। लेकिन अजीज दोस्तों, सिमत को बदलो, रास्ते को बदलो, नमाज की पाबंदी करो, उन उलमा की तकारीर सुनो जो दिल से बोलते हैं, वो जज्बा रखते हैं कि खुद अमल करे, दूसरा अमल करने वाला बन जाए। वरना जलसे से क्या होता है? अभी मौलाना मारूफ साहब आपको कह रहे थे, मैंने मजमून लिखा 26 सफ़े का किताबचा, मैंने उसको अलग से छपवा करके तकसीम किया फ्री में। उसमें यही लिखा है जलसे से फायदा क्यों नहीं होता, कराने वालों में क्या खराबी है, जो तकरीर करते हैं उनमें क्या खराबी है, और जो सुनने वाले हैं उनमें क्या खराबी है। तीनों जगह खराबियां हैं जिसकी वजह से जलसा का फायदा नहीं हो रहा है। तीनों को इस्लाह की जरूरत है। जो हम तकरीर करते हैं हमारी भी इस्लाह होनी चाहिए, जो जलसा कराता है उसकी भी इस्लाह होनी चाहिए, और जो सुनने वाले हैं उनकी भी इस्लाह होनी चाहिए। मेरी तो तबीयत चाह रही थी कि मैं उसी किताबचा को ला करके 1 घंटे में देख करके उसी को पढ़ लूं, लेकिन तौकीर की बात को कौन सुनेगा। यहाँ तो वेद और रामायण सुनने का मिजाज है, ऐसी तकरीर सुनने का मिजाज है जिसमें अमल का पहलू न हो, अमल करने की बात ना हो, बस लंबे लंबे वाकयात हों और हंसने वाले हों। शायर आ जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी, तो मौलवी साहब काटेंगे तो सब उठ के भाग जाएंगे। जलसा है ना, जलसा है ना, या मुशारा है। आप चंदा करते हैं पूरी दुनिया में और जलसे को बनाते हैं मुशारा। मुशारा कीजिए आप, और मुशारा के नाम से किसी के पास चंदा करने जाइए, 1 पैसा चंदा नहीं देगा। और दीनी जलसा के नाम से चंदा करते हैं लाखों रुपए और उसको मुशारा बना देते हैं। 10-20 शायरों को बुला करके और खूब शेर शायरी चल रही है सब। अरे ऐसे ऐसे लोग नात पढ़ते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, एक टाइम टखने के नीचे उनका पायजामा होता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, वो नात पढ़ रहे हैं, नाते नबी, कहते हैं बहुत इश्क नबी है उनको। अल्लाह रहम फरमाए। ये बातें थी जो मैंने कही, किसी को तकलीफ हो चाहे जलसा कराने वाले को वो भी मुझे माफ़ कर दें, सुनने वाले को अगर तकलीफ हुई हो वो भी माफ़ कर दें। अब एक बात सुन लीजिए, उलूम दीनिया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। ये इल्म